Hello students, today we are going to discuss exercise 2.1 and I am going to take one problem from this exercise. It is tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2. So how can we solve this question? Tan inverse 1 is the value of tan pi by 4 and here cos inverse minus 1 by 2. Last time I had told the identity of cos inverse minus x. This is cos inverse minus x equal to pi minus cos theta. That means at first we are going to write this one as minus cos pi by 3. This one. And sin inverse minus 1 by 2. Sin inverse minus x equal to minus sin inverse x. It is minus sin inverse 1 by 2. Now 10 and 10 cancelled by each other, pi by 4 plus cos inverse. We can write this one as cos pi minus pi by 3. And sin inverse 1 by 2 is the value of sin pi by 6. Again these cancel. Pi by 4 plus 2 pi by 3 minus pi by 6. Now take the LCM. 12 is the LCM. 3 pi plus 8 pi minus 2 pi. 8 and 3, 11, 11 minus 2, 9. It is 9 pi by 12. We can minimize by it. Now it is 3 pi by 12. This is the answer of this question. Now I am going to take another problem. I am going to take only some questions from the exercise. And then I am going to take the next one. This is cos inverse 1 by 2 plus 2 sin inverse 1 by 2. Now this is again the easy question. Cos inverse 1 by 2 is the value of cos pi by 3 plus 2 sin inverse, and this is the value of sin pi by 6. Now we will get pi by 3 into 2 pi by 6. Now it is 2 pi by 3. This is the question number 12 from your NCERT book. Only these two questions in the exercise. I think rest of the questions you have done. You will have done next question. Now I am going to next exercise. This is 2.2 and I am going to take the question number first. It is prove that 3 sin inverse x equals sin inverse 3x minus 4x cube. And the range is given to you. It belongs to minus 1 by 2, 1 by 2. पहले भी मैंने आपको जब इसकी आइडेंटिटी बताई थी 3 sin inverse x की, तो आपको मैंने बताया था कि ये आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करती है जब इसकी रेंज minus 1 by 2 से plus 1 by 2 हो. अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए फ्रॉम आरएचएस इसका हम लेंगे और यहां पुट करेंगे लेट x इक्वल टू साइन थीटा. नाउ साइन इनवर्स 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Now this is the identity of sin 3 theta. In class 11th you have done this identity. Now we have remaining 3 theta. How can we find the value of theta here? Theta equal to sin inverse x. Now replace theta here by sin inverse x. This is the solution of this question. Now remaining questions are similar like this one, question number 2 as well as question number 3 also. I am going to take question number 4. You have to prove that 2 tan inverse 1 by 2, 2 tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 7, tan inverse 1 by 7 equal to, you have to prove tan inverse 11 upon 17. Now how can we solve this question? 2 tan inverse x. Now the identity of 2 tan inverse x equal to what?
tan inverse 2x over 1 minus x square. This is the identity of 2 tan inverse x. I think so. Now we are going to put the value over here. It is now tan inverse 2 into 11 by 2 over 1 minus 121 upon 4 plus tan inverse. It is this is 1 upon 7. 1 upon 7. 2 and 2 cancelled by each other. Now we have remaining tan inverse 11 into 4 over 4 minus 121 plus tan inverse 1 by 7. Now tan inverse 44 over 117 plus tan inverse 1 by 7. Tan inverse theta minus tan inverse theta 44 over 117 plus tan inverse 1 by 7. Now we put the value, now we can use the identity of tan inverse x minus tan inverse y, and we can get the required result. Now pause the video and note it down. Now this is the question number 5 from exercise 2.2, and we have to find the value of tan inverse under root 1 plus x square minus 1 over x in the simplest form. तो लास्ट टाइम जब हमने लेसन नंबर 5 आपको बताया था, मैंने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी किया था, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे डिफरेंशियबिलिटी में. फिर से ये चैप्टर वहां पर ये एप्लीकेशन आएगा, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है. तो यहाँ हम लाइक पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, ये हमने पुट किया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा. Now it is tan inverse 1 plus tan square theta sec square theta, that means it is sec theta minus 1 over tan theta. Now we convert sec and tan in the form of sin and cos. Now tan inverse 1 minus cos theta over cos theta upon sin theta over cos theta. Cos theta cancelled. Now we have remaining tan inverse 1 minus cos theta. तो cos theta की आइडेंटिटी sin के टर्म्स में रखनी है. 1 minus 1 plus 2 sin square theta by 2 ओवर sin थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू cos थीटा अपॉन 2. ये सारी चीजें आपने क्लास 11th में कर रखी हैं. क्लास 11th में आपको दो तरह की आइडेंटिटीज बताई गई थी, cos टू थीटा, sin टू थीटा. अगर एंगल को हाफ कर दिया जाए तो ये एंगल भी जो है अपॉन 2 हो जाता है. -1 एंड -1 कैंसिल्ड, तो वी हैव रिमेनिंग tan इनवर्स sin थीटा बाय 2 से sin थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin बाय cos इट इज tan थीटा बाय 2. ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास रहा थीटा बाई 2. यहां से थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो इट इज tan इनवर्स x. तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1 by 2 tan इनवर्स x. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ आई एम गोइंग टू टेक द अनदर प्रॉब्लम, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 from your NCERT book. It is tan inverse cos x minus sin x over cos x plus sin x. यही सिमिलर प्रॉब्लम है जो आपको सॉर्ट आउट करनी है. इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सीधी सी बात है, ये सीधे सीधे सॉल्व नहीं सकता. एट फर्स्ट डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x. cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए, तो ये tan इनवर्स 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x. अब देखिए ये आइडेंटिटी क्या बन रही है. ये एक्सपेंशन है tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x का एक्सपेंशन लिखा हुआ है. tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x आएगा. tan से tan कैंसिल हो गया आपके पास, तो क्या रहा पाई बाई 4 माइनस x, और यही आपका आंसर हो गया. इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई पाई बाई 4 माइनस x. देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टेक द अनदर प्रॉब्लम. इसमें आपको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर
7, it is tan inverse x over अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, आपको किसी तरह से इस tan इनवर्स को कैंसिल करना है। तो आपको ये देखना है कि आप x की जगह पर क्या वैल्यू रखें कि आपका tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहां पर लेट x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहां पर साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो x बाई ए आ जाएगी और थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स x ओवर ए। तो वैल्यूज पुट करेंगे इसके लेफ्ट पार्ट में, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan इनवर्स ए साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा जिसका स्क्वायर रूट ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो यह आ गया आपके पास tan इनवर्स tan थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, थीटा रहा और थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पहले ही फाइंड आउट कर रखी है, ये है साइन इनवर्स x ओवर a। इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इट। Now the next question, it is tan inverse. You have to prove again tan inverse 3a square x minus x cube upon a cube minus 3a x square equal to, आपको प्रूव करना है 3 tan inverse x over a। तो इससे वही कॉन्सेप्ट रहेगा, लेट x इक्वल टू मैं पुट करूंगा a tan थीटा और यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी x ओवर a, और या मैं ये कह सकता हूँ कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x ओवर a। तो वैल्यूज पुट करेंगे tan इनवर्स, जहां पर x है वहां पर आपने a tan थीटा रखना है, तो ये हो जाएगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा ओवर a क्यूब माइनस 3a a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स यहां पर आप देखेंगे a क्यूब कॉमन है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर a क्यूब यहां भी कॉमन हो गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट हो गए। और ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है ये tan 3 थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया 3 थीटा और थीटा आपने फाइंड आउट कर रखा है 3 tan इनवर्स x ओवर a। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स लूंगा मिसलेनियस एक्सरसाइज से और उम्मीद करूंगा कि आप लोग 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर इसमें कोई क्वेरीज हैं तो कुछ जो हट के प्रॉब्लम्स थी, थोड़ा डिफर कर रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को मैंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो है प्रॉपरली क्लासेस को देख नहीं रहे हैं, और आप लोगों को ये काम सारा अपने फेयर नोटबुक में करते चले जाना है, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद इतना टाइम नहीं है, आप लोग का बोर्ड एग्जाम है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज वाइज आप अपने वर्क को कंप्लीट करें। कल को मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेने के बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन नंबर 3, दैट इज मैट्रिसेस। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो होप सो तब तक आप लोग इन एक्सरसाइज में जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।